Good evening, friends. It's my pleasure to be here in this program being organized by CRC. Chairman Devendra Somani ji, Dr. Satish Chandra ji. I can see many senior members. Of course, our my very dear friend and professional colleague, Dr. Rakesh Gupta ji, and and all participants in this program. Corona has given a new lesson to us that we don't need to meet physically, but meet on the Zoom and webinar like this only. But the challenge which a speaker has in a program like this is not able to see the participant and their reaction to the what is being discussed and argued, because the speaker has to modulate and articulate his views, keeping the mood, the way the audience is or the participant are getting, etc. And it becomes a challenge. You are speaking on a computer without knowing the reactions, what is what he's talking, what is going into, and how it is being taken up as issue. But hopefully, I believe, and the main challenge the speakers are missing, which Dr. Rakesh Gupta will also endorse, as hospitality is missed out. Yes. So normally when you go, at least one bouquet and one cup of tea and biscuits, that's also got missed out. So that's a big challenge which comes up. But anyhow, as Dr. Rakesh Gupta said, this budget is now more than 50 hours old. You would have read, listened to the finance minister's speech. You would have looked at the debate which were on electronic media, all secretaries, bureaucrats coming up, and yesterday in the newspaper and today also in the newspaper, everything has been said about it. I will just touch upon few points. Looking to the time constraint, I need to rush through the various provisions. As Rakesh said, I just have to go through, rush through the various provisions. So friends, as and when budget comes, there's a huge expectation from the finance minister. Everybody wants something up from the finance minister. And in common example, I say, जो हिंदी फिल्म में है ये दिल मांगे मोर. And nobody knows the compulsion of the finance minister. If she has to give something from one hand, she has to snatch away something from somebody else. We all are accountant. At the end of the day, we must agree budget is an ultimately a balancing exercise. अगर हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की भाषा में कहें तो ट्रायल बैलेंस तो टैली करना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट तो बराबर करने पड़ेंगे. हर आदमी कह रहा है भाई मेरा डेबिट घटा दो जो मेरे से आप टैक्स लेते हो. अब वो कहती है डेबिट घटा दें तो कहां से किसके अकाउंट में और डेबिट कर दूं या किसके क्रेडिट खत्म कर दें. दैट्स अ चैलेंज व्हिच हैज, एंड शी हैज टू pass through a difficult phase, and whatever is the exercise she has to carry it out. And one thing probably I hope every one of you may be knowing, the exercise of the budget will start with estimation of the expenditure. It is never with the income. The government start preparing, ask for each ministry somewhere in the month of August, September, they start writing letter. Please send your estimate, expenditure estimate for the next year. What are the new projects you want to take up? What are the expenditure which is likely to happen? What are the scenario going on of the existing scheme in the project? And on that basis, an expenditure target is prepared. And then we look at the income, and then we work out with the department who are contributing, income tax, excise, custom, how they are going to contribute, what they are going to do. And then exercise is carried out. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कभी कभी समझने के लिए ओनली. कभी आपने चर्चा सुनी होगी, अब की बार भी 10-15 दिन पहले आ गई थी, इनकम टैक्स को एक्सपेंडिचर टैक्स से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. और बहुत लोग कई बार कहते हैं कि बैंक से 2% ले लो, 1% ले लो. मैं उन सब लोगों के साथ हूं, लेकिन अगर वो कुछ एक छोटी सी बड़ी बात का ध्यान में कर लें, इस बजट डॉक्यूमेंट में हम सबको पता है कि 40 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने खर्चा करना है और पिछले साल 36 लाख करोड़ का खर्चा किया है. उस 40 लाख करोड़ में से 14 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स से आने हैं. 7,10,000 करोड़ रुपया तो शायद कारपोरेट का और 7 लाख करोड़ रुपया पर्सनल टैक्स का, जो 14,10,000 करोड़ रुपए बनता है. आप इस इनकम टैक्स को हटा के अब एक्सपेंडिचर से लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये 14,10 हट जाएगा, तो 14,10 किसी और रूप में लाना पड़ेगा, नहीं तो बजट घट जाएगा. जब ये मोटे मोटे फिगर घटेगी तो जो आदमी आज की डेट में ये 14,10,000 करोड़ रुपए 5 करोड़ दे रहा है, 10 करोड़ दे रहा है, हो सकता है उसका घट के अगले साल 50 लाख आ जाए या 2 करोड़ आ जाए. तो जब ये घट के आएगा तो किसी ना किसी आदमी का जो आज की डेट में 5 लाख दे रहा है वो 5 करोड़ हो जाएगा. अर्थमेटिक तो वहीं के वहीं आएगा, चेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि पैसे तो 14,10,000 करोड़ रुपए चाहिए.
तो ये सोच के चलना है कि साहब इसकी कोई ऐसी नक्शा बदल जाएगा, वो अपने आप में एक सेल्फ डिफीटिंग प्रोसेस होता है। और उसी के बजट बनाते समय बड़ी भारी इंटरनल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि मेरा छोटा मोटा इंटरेक्शन रहता है, तो आई कैन गेट टू नो कि भाई क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या वर्किंग चल रही है। कहीं भी जो छोटी सी भी छोटी कंसेशन आती है, उसका इमीडिएटली रेवेन्यू इम्प्लीकेशन देखा जाता है। That's why I say this budget of this 2022-3, despite there may be minor hiccups here or there, I say is one of the very good budget, which is a visionary budget, giving stability and credibility to the taxation regime. There is no change in tax rate. Apparently, it may have, I think, disappointed people who are looking for standard deduction, increase in threshold limit, increase in medical reimbursement, maybe some work from home allowance, etc. I was a very strong supporter of that also, etc. But in case by foregoing that, it's a budget which gives credibility and stability to the taxation regimes. Secondly, one thing we must know that 2 years, 2021 and 22, have been very difficult year, not for Indian economy, global economy. It has been very, very, I think, devastating, virtually write-off of these 2 years. And how much extra expenditure and how much money has been lost, that's a major issue which has come up. And somebody should ask a question that one should be thankful what has not happened. And that example comes वो गिलास पानी के गिलास वाले, वो पानी का गिलास आधा भरा है तो लोग सोचते हैं कि यार पूरा भर दो मेरा, तो मुझे 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, मुझे 1 लाख के दे दो, मुझे हाउस रेंट अलाउंस ये मिलता है, ये दे दो। और कभी कभी ये सोचना चाहिए कि इसमें खुशी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि पानी का गिलास पूरा नहीं भरा, आधा तो भरा हुआ है। One should be thankful to the finance minister in the last 2 years. She has not levied any extra tax. अगर वो पार्लियामेंट में खड़ी होकर कह देती कि इकोनॉमी डिफिकल्ट फेज से है, कोरोना है, और हम सब, मैं उम्मीद करती हूँ टैक्स पेयर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हर व्यक्ति के ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। She could have said it, but nahi kam. That was a visionary budget. I will say that's a visionary budget which she has prepared on that part. It's a big achievement the way she has worked out, and she has laid a roadmap of the working and the condition on that part. There may be many hiccups. कल मैं रात को दुबई चैप्टर में लेक्चर दे रहा था, तो वहां मैं जब कंक्लूड करने लगा तो मेरे से एक सवाल पूछा गया कि साहब आप अगर इस बजट में प्लस पॉइंट हैं, अगर आप इसकी डाउन साइज बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? मैंने कहा साहब देखिए, डाउन साइड तो क्या, कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई? मैंने कहा जो भी व्यक्ति टेबल में बैठता है उसके पास 100 एजेंडे होते हैं, प्रायोरिटी में 10 एजेंडे, 15 एजेंडे, 20 एजेंडे उठा लेता है। अगर मैं एक चीज की मायूसी मानता हूं तो सिर्फ एक है, और वो मैं आपको इसलिए रख रहा हूं कि शायद आपको भी थोड़ा सा इसमें वो इंटरेस्ट आए। आपने जीएसटी की फिगर देखी होंगी इस साल की कैसे फ्लक्चुएट की है, 80,000, 90,000, 31 एक्सेट्रा। जिस महीने में जरा सा लॉकडाउन लग गया या कोरोना बढ़ गया, उस साल में जीएसटी की फिगर इमीडिएटली 25, 30, 40 हजार करोड़ से गिर गई। अब जनवरी की 40 आ गई, उससे पहले 31 आई थी, पहले से आ रही थी। तो मैं कह रहा था कि सरकार अगर कोरोना को हैंडल करके खर्चा 50,000 करोड़ का कर ले, अगले महीने में उतने पैसे ज्यादा आ जाएंगे। यानी कि एक महीने में सरकार को 20,000 करोड़ का खर्चा करके हेल्थ सेक्टर पे रोक के और कोरोना को किसी तरह से वायबिलिटी रुक जाए, तो उतने पैसे कमाई और सरकार की जीएसटी में हो जाती है अगले महीने के अंदर, क्योंकि जीएसटी बढ़ जाएगा, एक्टिविटी पूरी होगी। आज की डेट में भी बहुत सेक्टर ऐसे हैं जिनकी वर्किंग आज की डेट में 20 से 25% ज्यादा नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बिल्कुल बंद है, एंटरटेनमेंट सेक्टर लगभग बंद है, सिनेमा थिएटर में बहुत एंटरटेनमेंट टैक्स आता है। आज की डेट में एविएशन सेक्टर का बुरा 25-30% से ज्यादा नहीं। स्कूल कॉलेज से जितना इकोनॉमिक ग्रो करती है, जितना मोबिलिटी होती है, चाहे बुक्स हैं, चाहे पीरियडिकल है, चाहे कंटीन है, चाहे बच्चों की ड्रेसेज हैं, चाहे टीचर जो वहां पे जाते हैं, या कैंटीन चलेगी, वो सारे खर्चे नहीं है। That has affected a lot of the economy, and I believe when we come back to the full scale economy, it will be a booming economy. तो उसके ध्यान में रखते हुए अगर आज की डेट में कोरोना को टैकल करने के लिए और हेल्थ को करने के लिए सरकार 50,000, 70,000 एक्स्ट्रा खर्चती है, तो मैं कहता हूँ ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। That's the only thing. Now coming to my topic, you will saying कि जैसे टाइम शॉर्ट होने के बावजूद भी दूसरी जगह भटक गए। So now coming to the issue, Rakesh ji had touched upon 2-3 issues, I will say.
I will just rush through the various provisions which have been a part of this budget and which have been, I think, maybe of interest to you, some of the provision on this part. As I see, there is no change in tax rate. Absolutely, by and large, there is absolutely no change in tax rate. This is, as I say, stability and credibility, individual HCF, AOP, etc. There is absolutely no change. What has been changed is only surcharge on long-term capital gain. And why that surcharge has been changed long-term capital, I will come to you. We all know that on individual HCF, AOP, etc., there is no surcharge if your income is up to 50 lakh. If the income is beyond 50 lakh and up to 1 crore rupees surcharge of 10%, 1 crore to 2 crore, the surcharge is 15%. Beyond 2 crore to 5 crore, it is 25%. And beyond 5 crore, it is 37%. That's the issue. Now, 2 years back, looking to the issue of the capital market, the finance minister has reduced restricted surcharge in respect of long-term capital gain arising on listed share and on dividend to 15%, saying that even if your income goes up beyond 2 crore rupees, to the extent it comprises of this, what we call long-term capital gain on equity share, listed share, and dividend will be 15%. But there was a huge demand on that part that long-term capital gain is not an income of the current year. Though it will get taxed on transfer, it is an accumulated income spread over the number of years. And that's why this should not be considered and should be excluded. Thankfully, she has accepted this proposal. This anomaly has been removed. Now, in case you have any long-term capital gain from any asset, not only shares and security, maybe a house, property, whatever it is, that your long-term capital gain, this will be chargeable to tax at 15% on this issue. And what is the message which you can get out of this? कोई आज मकान बेच रहा है और उसमें 2 करोड़ से ज्यादा का गेन आने वाला है, टोटल इनकम होने वाली है. कोई शेयर बेच रहे हो तो रोक लेना, 31 मार्च से पहले मत बेच देना. 31 मार्च से पहले बेच दोगे तो वो 25% और 37% का स्लैब लग जाएगा, और 1 अप्रैल के बाद बेचोगे तो वो स्लैब 15% में सरचार्ज में आ जाएगा. तो जो 24%, जो 28% आज की रेट में, वो 24% हो सकता है. 20 plus 15, 23 plus 4%, 23.92 will be the new rate. And the old rate will be 20 plus 37 in case you fall beyond 5 crore rupees. So that can be the additional gain which you can make it out. That's a message which is there. Now there's another change which has been made in tax rate is regarding AOP. There was a small distortion that AOP surcharge is also linked with the individual, about 37%. Some people would have represented that we are companies and we have made an AOP. So she has said yes, in the case of AOP, where all members are companies, not for all AOPs, with a condition that all members of that AOP are companies, only in that case the surcharge will be restricted to 15%. So that's a second condition which she had done. Small changes in cooperative society where she has reduced the MAT from 18.5% to 15%. And another change which will be relevant for tax rate is Section 115 BBD. May be relevant for few of my friends here. When a Indian company has a sub company outside India where it is holding share of more than 26%, any dividend received from such foreign company is liable for tax at a concessional rate of 15% under Section 115 BBD. That's a change. Now from 1st April 2022 onward, this concession is being withdrawn on the pretext that this 15% rate was fixed when in India, dividend was liable for dividend distribution tax at a rate of which comes to usually 20% overall. Now, since we are taxing dividend income at a full-fledged rate of 30%, there's no reason why foreign dividend should not be taxed at a full-fledged rate. So that's why that now will be fully taxable. And what is the message now here? जो पहले मैंने कहा था ना कैपिटल गेन को पोस्टपोन कर लो, यहाँ उल्टा मैसेज है. किसी इंडियन कंपनी की बाहर सब्सिडरी है और उसकी 26% शेयर इसके पास है, कोई होल्डिंग है, अगर उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो 31 मार्च से पहले डिविडेंड बांट के घर यहाँ लिया है इंडिया में, 15% लगेगा, और 1 अप्रैल के बाद लाएगा तो 30% के रेट में आ सकता है. That's the second message which is coming out on the clean on this. Now the second point, now these are the tax rate. Other than this is there is no change in the tax rate. Now when we come to individuals looking into you, there are certain concession etc. which were expected and which was announced. You will be recalling in June 21 when an announcement has come that COVID relief, what we call, that in case any medical expenses have been incurred by the employer on anybody or for any person,
or somebody has given a grant or aid to some person, that will be exempt. Now a statutory recognition has been given by making various amendments under various provisions. One is under section 17(2) on perquisites, whereby any expenditure has been incurred by an employer in respect of the treatment on account of the COVID or of an employee or the family member. And family member here are limited. Definition of family member is that given under section 10 subsection 5. It is not in section 56(2). आपको पता फैमिली वहां पे जो रिलेटिव की डेफिनेशन वो बहुत वाइड है और सेक्शन 10(5) में लिमिटेड है. इट इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन, parents, brothers and sister, wholly or partly dependent, anyone. So nobody else. When you take LTC under section 10(5), these are the family members. So similarly, if any employer has incurred any expenditure for meeting COVID, etc., or employer has given any compensation on the death to the family member of the employee, etc., that will be fully exempt. That is section 17(2), which has been provided for. Further, under section 56(2), if any person has provided medical aid to any person or has given any money to any person because of the death of that person, COVID, due to COVID, then 10 lakh rupees will be exempt. Present language which has been drafted in the finance bill probably indicate exemption will apply only if the amount is 10 lakh and less, but in case it goes beyond 10 lakh, the whole will be taxable. I don't think that that is the I think intent of this legislature. Intention of the legislature is to restrict this deduction up to 10 lakh rupees. So beyond 10 lakh it will be taxable, but up to 10 lakh it will be. In case somebody has received from relative, 56(2) otherwise is not applicable. But if somebody has received from non-relative, then up to 10 lakh rupees will be exempt. This is the exemption. When I am touching up this, I just a small another deduction. 80 CCD provide deduction in respect of contribution for the NPS. Now, employer also contribute on NPS in respect of the employee. In the case of central government, there is no ceiling. In the case of other employees, there is a ceiling of 10%. Central government employees get 14%. So state government employees were also making hue and cry in view of the, they are also getting 14%. So now this budget says that state government, whatever contribute for the employee, that will also be fully exempt. I believe this is a discrimination with the private employees. When central government and state government employees are entitled for 14% exemption of contribution from the employer, why not the private employer should have an equal treatment? I don't feel that there is should be discrimination between one employer or the other employer. Private employers are at par with the central and state employer. This discrimination between central and state government, mainly because central government employees are in a position in drafting the law. That's why it should be done. And why my impression is this: if you look at the perquisites value rules, government employees by and large get 2 perquisites, car और घर. गाड़ी और घोड़ा और गाड़ी, 2 चीजें मिलती है सेंट्रल एम्प्लॉय. दोनों की वैल्यूएशन इतनी लो रखी हुई है बिकॉज दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में मकान तो फ्री है ही है, और वो मकान जो 10 करोड़ रुपए का वो मिलता है वो भी फ्री है, और उसका अगर रेंटल वैल्यू निकालें तो हालत खराब हो जाए. और गाड़ी की वैल्यू जो टैक्स होती है वो 1200 रुपए महीना, कोई उसकी वो नहीं है. एनी हाउ that's a larger issue on that part. So these are the exemptions which are given. Other than this, there is no other concession. Now coming to the business part, section 28(4) provide inclusion of income in case anybody has received any benefit or amenity arising from the business. This amendment was made sometime 10 years back because the government has noticed that many companies give freebies, take people to the Hong Kong, Singapore for tour, etc., Europe to who are distributor, etc., etc. And why not this should be considered as the perks of the employee businessman? And that's why they have provided that this income has to be included. They give an expensive gift on this part. Now, in order to address this issue, because still the distributors were being paid, but the income was not being accounted for. Now, an obligation is being put on the person who is giving such freebies, tour, trip, etc., to their business associate, maybe vendor, maybe supplier, maybe the buyer, or maybe whatever it is. Then he need to deduct tax at source, and for that purpose, new section 194R is being introduced.
Now you need to make sure that if you are doing an audit or if you are carrying out advising a client, if client has given distributed some gift etc. to the vendor etc. to business expenditure, he need to pay deduct tax at 10%. Since these expenditure are in kind, then onus and liability is on the person who is giving this to ensure that tax get deposited. Either he pays out of his own pocket or he collects it from the person to whom it is providing. As in the case of a lottery or prize winning, etc., where it is given in kind, so that is to be done on that person. There are two exemptions on that part. In case of individual, threshold is 20,000 rupees. If the value is up to 20,000 rupees, then no TDS during a year. Second, individual and HEF. Individual and HEF are liable except those individual and HEF whose turnover is up to 1 crore rupees in case of a business and 50 lakh rupees in case of profession. That's a norm way of what is called a tax audit condition. So those are not required of 28(4). Another interesting amendment is in section 37(1). We all know that section 31(7) say any expenditure incurred which is wholly and exclusively for the purpose of business, not personal and capital in nature, is an allowable expenditure. Long time back, a debate has taken place whether expenditure incurred for a purpose which is prohibited by law or offense will be eligible or not. ये इशू आया था जब बॉम्बे में हम लोगों ने हफ्ता वो रैंसम की बातें हुई थी, तो वहां लोगों ने बहुत सारों ने कहा कि भाई बिजनेस चलाने के लिए महीने के पैसे देने पड़ते हैं या हफ्ता देना पड़ता है या रैंसम के पैसे, और शायद कुछ ट्रिब्यूनल की जजमेंट आ गई थी जहां कहा गया था कि ये एलिजिबल एक्सपेंडिचर है. उसको उस एक्सपेंडिचर के बारे में देन अमेंडमेंट आई थी, एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी थी. But such expenditure shall not include expenditure which is prohibited by law or which is an offense. वो नहीं मिलेगा. So far so good. लेकिन अब की बार मैं अमेंडमेंट की बड़ी इंटरेस्ट तारीफ करूंगा. 37(1) में एक एक्सप्लेनेशन 1 है. एक्सप्लेनेशन 2 6 साल पहले जेटली साहब ने डाली थी, वो CSR का एक्सपेंडिचर रोकने के लिए कि CSR का एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा. एक एक्सप्लेनेशन 3 डाली गई है और लिखा गया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन 1. एक्सप्लेनेशन 1 को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन 3, जिसमें लिखा गया है कि भाई जो एक्सपेंडिचर इंकर किया गया है, अगर वो एक्सपेंडिचर ऐसा है जो किसी कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स के बाहर है, वो भी नहीं मिलेगा. कोई कंपाउंडिंग दी है, फीस दी है, वो भी नहीं मिलेगी. और वो कोई एक्सपेंडिचर जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ऑफेंस है अंडर एनी आउटसाइड लॉ. अगर मैं इसकी लिटरल लैंग्वेज पढ़ूं, इंडिया में भी कोई खर्चा करा और किसी भी कंट्री में वो प्रोहिबिटेड हो, नॉट इंडिया में, तो वो भी पकड़ा जा सकता है, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑफ इंडिया और एनी आउटसाइड कंट्री. हालांकि इंटेंशन ये है कि वो खर्चा उस कंट्री में किया और वहां प्रोहिबिटेड. आई बिलीव आई कैन अप्रिशिएट दैट पॉइंट. तो ये 3 बातें नोट करने वाली हो गई. जो मेडिकल काउंसिल वालों ने जो कहा हुआ ना कि डॉक्टर को जो गिफ्ट दी जाती है वो दी जाती है, वो एग्जम्पशन में अब वो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये कानूनी लाभ प्रोवाइड कर दिया. क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, लेकिन आई एम स्टिल ऑफ द व्यू कि इसमें लिखा गया है 1/4/2022 तो लगेगी 2022-23 के बाद ही लगेगी. एक और इशू था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का. 2005 में ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आया था. चिदम्बरम साहब की सरकार थी, उन्होंने कहा था भाई लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए. मैंने उस समय भी एक बात कहता था, क्या जब मैं इनकम टैक्स सरकार को देता हूं उसमें मैं लिखता हूं कि इस इनकम टैक्स के पैसे एजुकेशन में नहीं लगाए जा सकते. आप एजुकेशन सेस लगा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो इनकम टैक्स में देता हूं, और मैंने आपको रोका नहीं कि 30 की जगह 31% कर दो उसको, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी अर्थमेटिक ठीक करना है, क्योंकि अगर इनकम टैक्स देते हैं तो एक उसका बड़ा हिस्सा स्टेट के पास जाता है. अब सरचार्ज एजुकेशन सेस लगाते हैं तो सारा का सारा सेंटर पे आता है. आपने कभी सोचा हो कि सरचार्ज क्यों लगाया जाता है? सरचार्ज फॉर द यूनियन लिखा जाता है. वो सरासर मेरे हिसाब से एक वे है कि स्टेट को हिस्सा नहीं दिया जाए, सेंटर को हिस्सा मिल जाए. जैसे वे आउट टू वर्क इट आउट ऑन. और मैं बार बार कहता हूं, टैक्स पेयर को कितने कैलकुलेटर लगाने पड़ते हैं. आप उसको सीधा बता दो. वो कोई मना करने वाला है कि मैं 35 नहीं दूंगा 30 ही दूंगा. आपसे कहते 30% ये लगेगा, 12% ये लगेगा, 4% ये लगेगा, और वो कैलकुलेटर करके कैलकुलेट करता रहता है. फिर वो TDS में ढूंढता रहता है. हम मुझे फोन करेगा, डॉक्टर राकेश को फोन करेगा, सरचार्ज जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, एजुकेशन सेस लगेगी नहीं लगेगी. Why you want to simply say कि साहब ये लगना है, 35 लगेगा 36 लगेगा. आप इंटरनल अपना एक कंप्यूटर लगा लो, उसका अपना हिस्सा बांट लेना एलोकेशन करके कि भाई ये सेंटर का है, स्टेट का नहीं हो. तो उसके बारे में 2005 में लगाया. अब लोगों का माइंड भी बड़ा जीनियस है.
इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 40A क्लॉज 2, वो ये कहता है कि भाई इनकम टैक्स जो आप पे करते हैं वो तो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, वो तो डिडक्शन मिलेगी। अब किसी ने कहा साहब इनकम टैक्स के अंदर सेस तो नहीं आना चाहिए, सेस तो पर्टिकुलर चीज को मीट आउट करने के लिए दिया है, इसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लगा सेसा गोवा लिमिटेड का, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, आप 48(2) में डिसअलाउ नहीं कर सकते। राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे चंबल फर्टिलाइजर में, उन्होंने भी कहा भाई नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है किसी ने। अब वो कलकत्ता ट्रिब्यूनल में लगा, किसी साहब ने वहां बड़ी और रिसर्च कर ली कि साहब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है श्रीनिवासा का पुराना, जिसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस, और सेस भी इनकम टैक्स ही माना जाएगा। वो जजमेंट आ गई। अब जब बजट बन रहा था उसके हाथ में, किसी के हाथ में जजमेंट लग गई, उन्हें मेमोरेंडम में वो सारे की सारी जजमेंट चिपका दी 12 पेज, और लिख दिया कि साहब ये एजुकेशन हेल्थ सेस नहीं मिलेगा। और अमेंडमेंट हो गई 16 साल पुरानी असेसमेंट ईयर 2005-6 से, रेट्रोस्पेक्टिवली 2005-6 से अब ये खर्चा नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने एडिशनल ग्राउंड लगाए हुए हैं सीआईटी अपील पे ट्रिब्यूनल में, और या 264 लगाया है हाई कोर्ट में लगाया, वो सब बेकार हो गए। अब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल 1/4/2022 को कानून बन जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिवली है, कोई झगड़ा नहीं हो पाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। दिस टेक्स केयर ऑफ द प्रोविजन ऑन दैट पार्ट। अब सवाल आ गया क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी को कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए। सरकार में कभी कभी ऐसा होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड की प्रॉब्लम आती है, और इनकम टैक्स वालों को आती है कि भाई मेरा टैक्स नहीं छूट जाए कहीं। तो इस बात की क्लैरिटी करने के लिए कि भाई क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स कैसे लगेगा, तो एक वर्ड ढूंढा गया वर्चुअल डिजिटल असेट, जिसमें टोकन आर्टिफिशियली जो भी आपने जनरेट किया, और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाई कि साहब इससे जो इनकम होगी हमें नहीं पता कि ये इनकम की नेचर क्या है। आप इसे बिजनेस इनकम मानो, कैपिटल गेन मानो, लॉन्ग टर्म मानो, शॉर्ट टर्म मानो, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानो। हमने एक सेक्शन बना दिया है 115 BBH, 30% टैक्स रेट लगेगा प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज। भाषा ढूंढी गई वही जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स एटसेट्रा होता है, जहां पे लगा 30% का, वही भाषा उठाई गई पूरी कि साहब ये 30% का टैक्स लगेगा, कोई खर्चा मिल वर्कआउट लगेगा। इसके अलावा आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लॉस आपका प्रॉफिट मेरा, और कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, काम खत्म। अब प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, अब क्या, हालांकि एक व्यू तो है कि भाई एक मैंने वो खरीदा, बिटकॉइन खरीदा जिसमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 8,000 का लॉस हुआ, तो 2,000 लगेगा, क्योंकि एक प्रॉफिट लॉस तो दोनों के इनकम ही लेके चलेंगे। अब सवाल मेरे से किसी ने पूछा भाई जैन साहब 28 मार्च को प्रॉफिट हो गया और 2 अप्रैल को लॉस हो गया, मैंने कहा फिर मुसीबत हो गई। अगर बिजनेस में भी होता तो भी ये टैक्स लग जाता। बोला मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, 28 मार्च को लॉस हो गया और 2 अप्रैल को प्रॉफिट हो गया, मतलब यहाँ तो इस सेक्शन में तो वो भी बेनिफिट नहीं मिलता, बिजनेस में तो मिल जाता। क्योंकि अगर बिजनेस में 28 मार्च को लॉस हो जाए और 2 अप्रैल को प्रॉफिट हो जाए, तो वो कैरी फॉरवर्ड करके आपको सेट ऑफ मिल जाता है। उल्टा हो जाए तो वो नहीं मिलेगा, सरकार 10,000 का टैक्स लेगी, 8,000 का कहेगी अगले साल 8 साल के लिए घुमाते रहो अपना, आ जाना कभी बात। बिटकॉइन में ये नहीं होगा, क्रिप्टो में ओनली सरकार प्रॉफिट की पार्टनर है, बाकी के नहीं है 30%। और इसको कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए एक और अमेंडमेंट कर दी, एक नया सेक्शन 194 डाल दिया कि जब भी आप इसकी पेमेंट करेंगे तो 1% टीडीएस काटेंगे। उस टीडीएस काटने के लिए भी 3 तरह के कानून बनाए कि थ्रेशोल्ड बना दिया 10,000 और 50,000 रुपए का स्पेसिफाइड पर्सन के केस में। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब वही पर्सन जिसकी की इंडिविजुअल एचईएफ जो बिजनेस नहीं करता, और अगर बिजनेस करता है तो 1 करोड़ से कम की टर्नओवर है, और प्रोफेशन करता है तो 50 लाख से कम की टर्नओवर है। ऐसे केस के अंदर तो 50,000 से ऊपर क्या है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। और दूसरे आदमी के केस में 10,000 रुपए की थ्रेशोल्ड बनाकर करती और टीडीएस काट के जमा। हालांकि वो प्रोविजन ऑफ टीडीएस पैन के वो अप्लीकेबल नहीं होंगे, वो चैप्टर नहीं होंगे, क्योंकि इसको उस टाइम में लेंगे 194 IA की कैटेगरी, तो इसके ऊपर अब टीडीएस लगेगा। अब ये बहुत सारे सवाल आज की डेट में आए हुए हैं, और आपने देखा होगा 3 दिन में बाकी तो बजट सारा गायब हो गया मीडिया से, लेकिन क्रिप्टो करेंसी खूब चल रही है आज के डेट में टीवी के ऊपर। लीगलाइज कर दिया, ये नहीं कर दिया। पहले तो ऐसे लग रहा था कि लीगलाइज हुआ या नहीं हुआ, मैं उसे 2-3 जवाब दे देता हूं उसके बारे में। अपरेंटली लीगलाइज कर दिया मेरे हिसाब से, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि अगर स्पीच पढ़े फाइनेंस मिनिस्टर की और मेमोरेंडम पढ़े
कि इतना बड़ा ये बिजनेस चल रहा है और इसको टैक्स करने की क्लैरिटी करने की जरूरत है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये इलीगल है, ये क्या हो रहा है। अगर इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, इलीगलिटी हो रही तो कैसे हो रही है। और ये बड़ा सेटल्ड, लेकिन विदाउट गोइंग इनटू डिबेट, इनकम टैक्स वालों को राइट है इलीगल बिजनेस को भी टैक्स करने का। जो मेरे दोस्त पुराने जजमेंट को ढूंढने की कोशिश करें तो एक बड़ी पुरानी क्लासिक जजमेंट है सीआईटी वर्सेस प्यारा सिंह। पुरानी जजमेंट है सीआईटी वर्सेस प्यारा सिंह। प्यारा सिंह जी स्मगलिंग करते थे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, और पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते समय वो पकड़े गए और उनकी 65,000 रुपए की करेंसी सीज हो गई। और पैजर की करेंसी सीज हो गई, जब उसकी असेसमेंट होने लगी तो उसकी स्मगलिंग की इनकम 65,000 रुपए बनाई गई और करेंसी सीज हुई थी 65,550 की। उसने कहा मुझे इसकी डिडक्शन दे दी जाए। उसकी डिडक्शन इसलिए डिनाई कर दी कि साहब ये तो कन्फिस्केट हुई है और ये इलीगल है, ये खर्चा आपको नहीं मिलना चाहिए, इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा कि साहब बिजनेस लीगल हो या इलीगल हो, इलीगल बिजनेस की भी ग्रोस रिसीट को टैक्स नहीं कर सकते, आपको उसको इनकम को टैक्स करना पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आया उसके अंदर, जब वो 37(1) की बात चल रही थी उसके बारे में, लीगल के बारे में, तो अगर वो मैं जब पढ़ रहा था जजमेंट को, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आया, इलीगल बिजनेस में इलीगल एक्सपेंसेस अलाउड हैं, लीगल बिजनेस में इलीगल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। एक और केस है अब्दुल हजूर करके, नाम के हजूर करके, उसमें केस क्या है, तो लीगल इलीगल बिजनेस में इलीगल एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे, लेकिन लीगल बिजनेस में इलीगल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। ये अपना आप एक क्लासिक केस है। एनीहाउ आई लीव दिस चैप्टर, दिस टॉपिक हियर, दिस इज द पार्ट व्हिच इज टू बी कंसीडर ऑन दैट पार्ट। आई मूव टू द अनदर प्रोविजन रिगार्ड, लेकिन इसी में एक और पार्ट है कि अगर ये आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो 56(2)(10) भी अमेंड कर दिया कि गिफ्ट करेंगे तो जो रिसीव करेगा उसके हाथ में भी ये इनकम मानी जाएगी। उसके लिए प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है 56(2)(7) के नीचे, उसके अंदर एक वर्ड और ऐड कर दिया, डिजिटल एसेट। तो एनी डिजिटल एसेट गिवन टू एनीबॉडी without consideration or at a consideration less than the fair market value where the difference is more than 50,000 rupees, that will be considered as income from other sources and liable for tax at 56(2)(10). वो एक सेपरेट चैप्टर वर्किंग बन के अलग से आ गया है। अनदर इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है सेक्शन 68 की, जो आपकी रेलिवेंस की हो। अभी तक 68 में नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन क्रेडिट की जिम्मेवारी एसएससी की है। 2012 में एक प्रोवाइजो डाला गया कि इन द केस ऑफ ए कंपनी अगर शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम आता है तो उसका सोर्स, नेचर एंड सोर्स शेयर होल्डर का भी बताना जरूरी है। नहीं अगर होगा देन इट विल बी डीम्ड टू बी द अनएक्सप्लेन्ड इनकम। उसी भाषा को नया लगा के एनी लोन और एडवांस इन द बुक्स ऑफ द एसएससी, it shall be deemed to be income in case the SSC is not explained unless the person who has given the loan or advance explain the nature and source. कोई एक्सक्लूजन नहीं है, मतलब नहीं जिसने लोन दिया वो भी एक्सप्लेन करे असेसिंग ऑफिसर का उसका नेचर एंड सोर्स कहां से है। तो आपने अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी बताना पड़ेगा कि जो आपको लोन दिया था उसके पास उसके पैसे कहां से आए थे। बैंक को कोई एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है। किसी एनबीएफसी से लिया वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओनली पॉजिटिव साइड जो मैंने देखी है, वर्ड यूज है लोन और एडवांस एटसेट्रा यूज किया है, तो शायद बिजनेस के जो क्रेडिट है, एक्सपेंसिव क्रेडिट है, शायद वो इस भाषा में नहीं फंसेंगे, जिसका झगड़ा आज की डेट में सेक्शन 68 में अभी भी होता है क्रेडिट के बारे में। हालांकि जजमेंट सारे फेवर में है कि नहीं लगना चाहिए वो, लेकिन फिर भी एक इसके बारे में चैलेंज आएगा। तो ये 68 का आ गया है और 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। This will be again a big challenge on that part, on this issue part only. Now coming to another amendment which is in section 94, anti-tax avoidance measure. We will all know that म्यूचुअल फंड में जो डेट के अंदर पीछे एक वर्किंग होती थी इक्विटी में, उस समय एक टैक्स प्लानिंग चल रही थी कि आज एक यूनिट जो 10 रुपए का है और बुक वैल्यू उसकी नेट वैल्यू 20 रुपए हो गई है, आप उसको आज खरीद लिए 20 रुपए का और कल वो डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा, तो आपकी हाथ में कॉस्ट 20 रुपए की रहेगी, 19 रुपए की रहेगी, और लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए की हो जाएगी, नई यूनिट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो उसको हम वो स्ट्रिपिंग ऑफ इनकम स्ट्रिपिंग करते थे। डिविडेंड भी किया जा सकता था, स्ट्रिपिंग कहते थे अगर वो बांट देता था डिविडेंड, और अगर यूनिट करता था। तो उसके लिए सेक्शन 94 में अमेंडमेंट की थी और 94(7) और 94(8). तो शेयर का डिविडेंड और यूनिट का डिविडेंड और म्यूचुअल फंड के यूनिट की स्ट्रिपिंग प्रोहिबिटेड थी आज की डेट में।
नाउ क्योंकि सरकार ने 4 साल पहले एक नए यूनिट निकाले हैं जिसको हम रीट्स कहते हैं और इनविट्स कहते हैं, जो आज की डेट में एक नया मॉडल आएगा रेंटल इनकम का, इन्वेस्टमेंट इनकम का, कि आप उसके पार्ट करते हैं, वो इसमें कवर्ड नहीं थे। उनको कवर करने के लिए उनको भी आज की डेट में 94(7) और 94(8) में इंक्लूड कर लिया, और 94(8) की डेफिनेशन को वाइड करके सारे शेयर एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड कर लिया। विद द रिजल्ट बोनस शेयर की स्ट्रिपिंग भी अब आज करेंगे तो उसकी स्ट्रिपिंग भी आपको अलाउड नहीं होगी। जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है समझने का बोनस स्ट्रिपिंग का, तो मैं बता दूं कि आज की डेट में अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर हैं और उसका रेट 500 रुपए का है, तो आपने 500 रुपए के खरीदे आज, और रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका बोनस इश्यू कर दे 141, और उसकी वो क्या बुक क्लोजर की डेट रख दे 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 20 को आपके पास 100 शेयर होंगे 500 रुपए के रेट के हिसाब से। 1 अप्रैल को आपको 100 शेयर और मिल जाएंगे, लेकिन आपके रेट सबका रेट 250 रुपए का हो जाएगा। आप पुराने वाले शेयर अगर आप बेचते हैं 1 अप्रैल 2 अप्रैल को, तो आपको 250 रुपए का लॉस मिलता था उसमें। नाउ इट इज बीइंग सेड कि ये शेयर विल बी लायबल फॉर 94(8), जिसमें ये लिखा है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदे हैं 3 महीने पहले बुक क्लोजर से, और आपने उनको बेच दिया है 9 महीने के अंदर बुक क्लोजर के, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक, इन दौरान में अगर आपको उसका लॉस होता है तो वो लॉस आपको नहीं मिलेगा, वो लॉस आपके बोनस शेयर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। घूम फिर के मैं मानता हूं एक सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट है, राकेश जी एंडोर्स करेंगे, अनारकली की जो जजमेंट थी, जिसमें इसी रेशो को कहा गया था, राइट इश्यू के ऊपर बड़ा झगड़ा हुआ था वहां पे। तो उन्होंने कहा भाई जब राइट मिलते हैं तो राइट फ्री नहीं मिलते, वो उसमें कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आज की डेट में वो बोनस शेयर की कॉस्ट 9 महीने के अंदर अगर बेचते हैं तो वहां जुड़ जाएगी, 9 महीने के बाद वो बाहर हो जाएगी। तो दिस इज एन ओवरऑल आई थिंक net result over the working on this part. On this part, now there are few amendments which may touching upon procedural part and other parts, and I think I can take few questions on that part, or if I can continue with few 194 YB की there is amendment कि जो TDS 1% आपको प्रॉपर्टी पे काटना पड़ता है, जो आज की डेट में था कि कंसिडरेशन पे काटना पड़ेगा। अब सरकार को लगा कि यार कंसिडरेशन पे तो हमें पता नहीं लगता कि सर्कल रेट क्या था, तो नाउ अमेंडमेंट इज बीइंग मेड, सर्कल रेट और कंसिडरेशन पेड विच एवर इज हायर, और कंसिडर एंड बोथ 50 लाख से दोनों नीचे होंगे तो नहीं लगेगा, 50 लाख से ऊपर एक भी होगा तो लगेगा। और जब ये सर्कल रेट की कैलकुलेशन करनी है उसमें वो 10% का डिस्काउंट नहीं लगेगा। कभी मेरे से लोगों ने पूछा कि भाई सर्कल रेट में 10% मिलता नहीं, टीडीएस पूरे सर्कल रेट के हिसाब से काटना है, वो 10% का जो डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर नहीं लगेगा, वो टीडीएस पूरे पे काटना है। So that is another amendment which has been made in 194 IA on that part. So I believe these are the major issues. And then Rakesh is here, I believe. So some of the issue 144B and etc. 147 he is covered very well. I think 147 cover किया होगा राकेश जी आपने? आप म्यूट पे हैं सर। नहीं सर मैंने नहीं किया। तो नाउ आई लीव इट टू अगर सुमानी जी और सतीश, डॉक्टर सतीश जी, एज अप टू यू कि भाई कैसे, अगर कोई लगता है कोई क्वेश्चन आंसर है तो उसको टेकअप किया जा सकता है, अदरवाइज क्योंकि वो प्रोविजन मुझे लगता है अच्छी तरह राकेश जी ने बहुत समझा दिया है, जो अपडेटिंग ऑफ रिटर्न के बारे में था वो आपको बहुत क्लैरिटी आ गई है। यू आर म्यूट सतीश जी। थैंक यू सर। सर आपने ये बताया था 56(2) में कोविड-19 के केस में 10 लाख रुपए तक का डिडक्शन की बात की थी। सपोज मैंने 11 लाख किया है तो वो 11 माइनस 10 होगा या पूरा टोटली 11 भी चला होगा? क्योंकि नहीं अभी देखिए सरकार की इच्छा है 10 लाख की छूट मिलेगी, 1 लाख पे टैक्स लगना चाहिए। और लैंग्वेज जो है आज की डेट में वो बहुत क्लियर नहीं है, इट्स नॉट हैप्पीली वर्डेड। आई एम रीजनेबली श्योर कि ये बजट जब पास होगा तो उसको क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। सर एक रिपीटेड लिटिगेशन के बारे में, जैसे ये 148 के नोटिसेस जो 31 मार्च 2021 के बाद के थे और उनका लिटिगेशन जो अभी चला और सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो क्या ये वाले भी रिपीटेड लिटिगेशन में आ जाएंगे क्या, दूसरे केसेस भी? देखिए इस बजट के अंदर उस प्रोविजन को कहीं नहीं छेड़ा गया। हाँ, इस बजट के अंदर उस प्रोविजन को कहीं नहीं छेड़ा गया है, लेकिन इस बजट के अंदर 148 के साथ इतनी छेड़खानी की गई है कि जो पिछले साल की सोच थी और इस साल की सोच में रात दिन का फर्क आ गया।
और मैं एक एग्जांपल देता हूं, चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, वो दुबे जी रह गए। पिछले साल कहा था हम लोगों की चिंता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए वी वांट टू पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी, तो 3 साल का प्रोविजन हम समझते हैं बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा केस नहीं खुलने चाहिए, और 3 साल के बाद हम उसमें खेलेंगे जहां हमें एसेट्स मिल गई एक्शन में। अब की बार आपने 2 अमेंडमेंट डाली हैं, 2 क्लास बढ़ाई हैं कि एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री और एंट्री कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में मिल गई है, या कोई एक्सपेंडिचर की कोई मिल गया जो खर्चा है। अब मैं पूछता हूं एंट्री और एंट्री बुक्स में मिलने के बाद बचाई क्या है? कौन सा केस ऐसा है जो इसमें कवर नहीं होगा 148 में? 10 साल का प्रोविजन सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। 2 मिनट लगा के मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं अबाउट चैरिटेबल ट्रस्ट का। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में पूरी महाभारत है चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इस पेज में। इस बजट के अंदर 84 क्लॉजेज हैं फाइनेंस बिल के अंदर, और 35 पेज के अंदर मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग चैरिटेबल ट्रस्ट का है। समाज के लिए, देश के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी जो काम करती हैं वो सरकार दूर दूर तक नहीं कर सकती। चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे कोरोना हो। 2 साल का इतना सीरियस अनुभव है कि जितना एनजीओ अगर नहीं सपोर्ट किया होता तो शायद कंट्री की आम जनता जो आज की डेट में सरवाइव करे नहीं है। कैसे लोगों ने ऑक्सीजन दिए हैं, कैसे वो क्या दिए हैं, वेंटिलेटर्स दिए हैं, कितने कंट्रीब्यूशन किया है वो सोसाइटी के। और ये सारी सोसाइटी जितनी है पार्ट टाइम वर्कर पे चलती है, रिटायर्ड लोगों में जो अपना घर काम छोड़ के इस काम में लगे रहते हैं रात दिन में। उनसे ये उम्मीद करना, वो इनकम टैक्स के इतने कॉम्प्लेक्स कानून, मैं ये एंडोर्स कर सकता हूँ यहाँ बैठ के कि जब से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं पिछले 40-45 साल में काली किताब के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी। फिर भी कोई सवाल आता तो सबसे पहले किताब उठा के नकल मारनी पड़ती है, कोई जवाब नहीं दे सकता उसके। और कोई बजट ऐसा नहीं है पिछले 25 सालों में जिसमें कोई ये सेक्शन 10, 11, 12 को छेड़ा नहीं गया। 11, 12 में, और अब की बार मैं जब पढ़ने लगा मेमोरेंडम तो मैं हैरान हुआ। वो कहते हैं 1023C और 11, 12 दो अपने आप में अलग अलग स्ट्रीम है, एक रजीम वो है, एक रजीम ये है, और इन दोनों में आपस में विरोधाभास है और मिलाना है, और उसके लिए 40 पेज की अमेंडमेंट करी है। मैं पूछता हूं यार इन दोनों सेक्शन को पेंट कर देते और निकाल के बाहर फेंक के एक नया सेक्शन डाल देते, क्या जरूरत थी? अब समराइज कर दूं 5-6 पॉइंट जो आपको ध्यान करने होंगे। पहले 1, अब किसी ने ध्यान किया कि दोनों सेक्शन में कहीं लिखा नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, ऑडिट दोनों में है। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात है, तो एक प्रोविजन डाल दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी। अब जब प्रोविजन डाल दिया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी तो एक सवाल आया कि खर्चा कौन सा मिलना चाहिए। तो किसी ने पढ़ लिया सेक्शन 11 में लिखा इनकम अप्लाइड। बोले अप्लाइड का मतलब तो तब होता जब आपने पेमेंट कर दी, उधार में कराया तो नहीं। मीनिंग देयर बाय कि जब आपने जो पेमेंट कर दी वही होगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे मेंटेन होंगी। तीसरा सवाल आया कि साहब क्या होगा अगर एग्जेम्पशन डिनाई हो जाए? तो कहते हैं कोई असेसिंग ऑफिसर ग्रोस रिसीट को टैक्स कर देते हैं, कोई खर्चा अलाउ कर देते हैं। तो बोले इस कंट्रोवर्सी को भी खत्म करने की जरूरत है। जो आपकी ग्रोस रिसीट है उसमें जो आपने खर्चा अपने ऑब्जेक्ट के लिए किया वो डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन 4 शर्तें लगेंगी उसमें भी। जो खर्चा आपने कॉर्पस में से किया उसकी डिडक्शन नहीं देंगे, जो खर्चा आपने डोनेशन वगैरह लिया उसकी डिडक्शन नहीं देंगे, जो खर्चा आपने लोन लेके किया वो नहीं देंगे, और जो उस असेट की डेप्रिसिएशन नहीं देंगे जो आपने एप्लीकेशन दे दी। और इनकम कंप्यूट करते सेक्शन 40A3 कैश पेमेंट वाला भी लग जाएगा और टीडीएस वाला भी लग जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। वो काम चैप्टर बराबर कर दिया। एक कंट्रोवर्सी थी कि 5 साल तक की एकुमुलेशन हो सकती है, तो 5 साल की एकुमुलेशन करने के लिए ये सवाल था कि 5 साल के बाद 6ठे साल में टैक्स करोगे या 5वें साल में करोगे। अब भाई सरकार को तो है कि जो मेरे मन भाए, तो कहा एक जगह लिखा 6 साल, एक जगह 5 साल। बोले यार 5 ही कर देते हैं। मैं पूछता हूं यार तो इतना तो दिल जिगरा करता है कि 6ठा साल कर देते कि 5 साल 31 मार्च तक का तो उसको टाइम दे दो खर्चा करने का, नहीं हुआ तभी तो 6ठे साल में टैक्स करूंगा उसको। बोले नहीं 5वें में करेंगे, दोनों के प्रोविजन निपटा दिए गए। एक आया कैंसिलेशन करने का टाइम कि कमिश्नर कैंसिलेशन में फाइल पड़ी रहती है, घूमती रहती है, कमिश्नर को टाइम दे दिया। पिछले साल बजट में कहा गया और 3 बार अमेंडमेंट हुई। 2021 का बजट आया, 20 का बजट आया, उसमें प्रोविजन नए लाए गए। कोरोना होने की वजह से वो प्रोविजन पोस्टपोन करे गए, वो टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ में 2021 के बजट में फिर डाले गए, और ये कहा गया कि हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे, 3 साल तक छेड़ेंगे नहीं। अब ध्यान आया यार ये 3 साल तक तो ट्रस्ट मजा करेगी, बिना जेन्युइननेस का पता ही नहीं लगेगा हमें तो।
बोले नहीं आप इनकी 3 साल में भी हम इंक्वायरी कर लेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन हम भी कैंसिल करते हैं। एक ही ऑब्लिगेशन लगा दिया असेसिंग सीआईटी के ऊपर, जिस दिन वो नोटिस देगा उसके नोटिस के क्वार्टर एंड खत्म होने के 3-6 महीने के अंदर अंदर उसे फैसला करना पड़ेगा कि भैया कैंसिलेशन होगा नहीं होगा। असेसिंग ऑफिसर अगर रेफरेंस भेजता है तो असेसिंग ऑफिसर का जो पीरियड है जब तक वो वहां से सीआईटी का जवाब नहीं आता, वो पीरियड असेसमेंट का एक्सक्लूड हो जाएगा वो वर्किंग करने के। एक चीज बहुत अच्छी करती है, एक बड़ी झगड़ा होता था कि जो पैसे सैलरी आपने रेंट आपने कोई खर्चा कर दिया ट्रस्टी या रिलेटेड पार्टी पे, तो एक सेक्शन 13(1)(c) है जिसके ऊपर वो खर्चा डिसअलाउ होता था, और जैसे ही वो 100 रुपए डिसअलाउ होते थे तो एग्जम्पशन पूरी उड़ाकर सारी इनकम बाहर कर देते। तो इसमें कह दिया भाई अब ये ऐसा नहीं करेंगे, 13(1)(c) में ऐसा नहीं करेंगे। सिमिलरली 13(1)(d) में इन्वेस्टमेंट के अगर आपने वॉयलेट कर दिया 11(5) का प्रोविजन तो आपकी सारी एग्जम्पशन उड़ा देंगे। बोला ऐसा नहीं करेंगे। 13(1)(c) में कहा कि जितना खर्चा आपने एक्सेस दिया है हम उस खर्चे को उसकी जिसको दिया है उसकी डीम्ड इनकम मानेंगे, और उसके ऊपर जैसे वो क्रिप्टो करेंसी को 30% टैक्स लगाया ना वो 115 BBH, तो अब BBI आ गया एक, तो एक 115 BBI आ गया, वहां पे 30% का टैक्स लगेगा उसको। और बोले ट्रस्ट ने तो गुनाह कर दिया और इतना बड़ा गुनाह कर दिया, ट्रस्ट 30% पेनल्टी देगी। 271(AE) में एक नया प्रोविजन लाया कि ट्रस्ट उसके नाम की 100 और 30% पेनल्टी टैक्स के नहीं 100% पेनल्टी ऑफ अमाउंट पेड, एक्सेस अमाउंट पेड पहली बार, और दो बार हो गए तो 200%। स्क्रूटनी में केस आता है तीसरे साल में, 3 साल के तो क्राइम हो जाएगा पक्का। फॉर्चुनेटली ये नहीं कहा कि पहले साल 100, दूसरे साल 200, तीसरे साल 300, चौथे साल 400। जैसे कभी कभी मजिस्ट्रेट करता है ना कि साहब मेरा जुर्माना कम कर दो, बोला कम लगता है 500 कर दूं, ज्यादा बोल रहा 2000 कर दूं। तो ऐसा हो गया कि पहले साल का डिफॉल्ट है तो 100%, दूसरे साल का डिफॉल्ट है तो 200%। This is the challenge which is trusts are going to face. I am reasonably sure the way it is going to add, और 115 TD के प्रोविजन शायद मेरे दोस्तों ने नहीं पढ़े होंगे। अगर 11 TD है, TDE भी आ गया और F भी आ गया उसके लिए हॉस्पिटल वगैरह के लिए, उनके प्रोविजन इतने ड्रैकोनियन है कि जिस साल में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए उस ट्रस्ट के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लगा के उसके ऊपर मैक्सिमम मार्जिन रेट का टैक्स लगेगा 42%। These are the challenges which has come up. Friend, looking to the time constraints, so I've just tried to cover up the provisions. My apology to Dr. Rakesh ji. No, it's all right. And thanks to Satish ji, Dr. Satish ji. Thanks to Devinder ji for giving me these opportunities. I'm getting phone call from the other chapter. Thanks a lot. Thank you, please, and wish you all the best. Thanks a lot.